Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Sayyid Zishan Haidar. I welcome you all in the course of documentary and short film production and film and drama studies. This subject, production, will help you in documentary making and in film and drama studies. This is a combined lecture for both classes, and today our core topic objectives are to create understanding about production phase, to create understanding about audio and video recordings, to create understanding about camera framing, to discuss the camera movements, to discuss the set designing, and to highlight the lighting techniques. And our learning objectives are that after covering this topic, you all will be able to understand what is production phase, what is audio and video recording, what is the chemistry of camera framing in production, what are the camera movements, what is set designing, and also you will be able to understand that what is 3-point lighting technique. So let's begin with the topic. And before starting our today's topic, the second phase, production phase, we will discuss that what we learned in the previous topic. Our previous lecture was about pre-production. That was the first phase of production that we learned in the previous lecture, that there are three phases of production: pre-production, production, and the post-production. So let's have a short recap about the previous lecture, that what we have done in our previous lecture. In our previous lecture, we discussed that production phases include idea generation and proposal writing, research, scripting, and budget. That was our previous lecture, and in our today's lecture, we will discuss the second phase of production, that is production. Production means the actual recordings, the actual audio and video recordings. What we have done in our planning phase, that is the implementation phase. What we have planned for our production, we will implement in this second phase. This phase is about, actual recordings. Either it is audio recording or it is a video recording. Whatever you have to record, whatever, either it is a film, documentary, drama, or a music video, it's totally about to your project. Whatever you want to record, you will record in the second phase, that is production phase. So this phase include, as I told you, that audio recording, video recordings, and the second one is set designing. Set designing is also very important, that what visuals you want to create, what visuals you want to show to your audience. And the third one is lighting techniques. In this lecture, we will also discuss the 3-point lighting techniques. So this is all about production phase. This is all about the second phase, implementation phase, that what you have planned, what you have research about it, जो आपने रिसर्च की है, जिसके मुतालिक आपने एक पूरा पेपर वर्क तैयार किया है. अब सेकंड फेज में हम उस पेपर वर्क पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. अपने जो आइडिया हमने अप्रूव करवाया था, एक प्रपोजल, बजट, स्क्रिप्ट, जिसकी पूरा अप्रूवल हम स्टेशन हेड से, अपने सुपरवाइजर से, अपने स्टेशन डायरेक्टर से, अपने प्रोडक्शन डायरेक्टर से, जब हम अपने आइडिया को अप्रूव करवाते हैं, जब हम अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं, अपना आइडिया जो है वो टोटली कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस आइडिया कंप्लीशन के बाद हम सेकंड फेज में, दूसरे मरहले में आ जाते हैं, जो कि एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स का मरहला है. जो प्लान हमने किया था, जो आइडिया हमने बनाया था, अब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, उस आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना है. यानी कि जो हमने रिसर्च कंप्लीट की थी, अब हमने एक स्क्रिप्ट उसका लिख लिया. अब उस स्क्रिप्ट, बेसिक जो गाइडलाइंस थी, अब उस स्क्रिप्ट पे इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, और उसको सेकंड फेज को हम कहते हैं प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हम करेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे, सेट डिजाइनिंग भी करेंगे, और उसके बाद है लाइटिंग पर भी हम इसी मरहले का, इसी फेज का लाइटिंग भी इसका हिस्सा है. फर्स्टली हम जो बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग्स. कौन सी रिकॉर्डिंग हमने करनी है? रिकॉर्डिंग इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट. जो आपने स्क्रिप्ट लिखा है, उसी के मुताबिक आपने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है. इफ द टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज फिल्म और ड्रामा, the producer needs to record the dialogues. If it is news,
and then news via news anchor will be recorded, and in documentaries the location shots and voice overs are recorded. So we can say that all kind of recordings are included in the second phase, in production phase. यानी कि अगर आप फिल्म या ड्रामा बनाने लगे हैं, अगर आप फिल्म और ड्रामा के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो स्क्रिप्ट लिखा है उसके मुताबिक आपने डायलॉग्स रिकॉर्ड करने हैं, जो आपने सीन्स लिखे हैं, जो आपने स्क्रीन प्ले एक लिखा है, तो स्क्रीन प्ले में अकॉर्डिंग टू योर सीन, अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन प्ले आपने रिकॉर्डिंग्स करनी है, अकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट आपने रिकॉर्डिंग्स करनी है। तो ये आपका बेसिकली सेकंड फेज का रिकॉर्डिंग्स का हिस्सा है, जिसमें आपने ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी है। और उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो जो लोकेशन शॉट्स आपने अपने स्क्रिप्ट में मेंशन किए हैं, वो एक तो उसकी लोकेशन शॉट्स आपने लेने हैं, इंटरव्यूज आपने रिकॉर्ड करने हैं रिकॉर्डिंग फेज में, एंड थर्ड वन इज कि आपने अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है। तो ये सेकेंड फेज है, जिस पर अगर आप हम न्यूज़, क्योंकि वैसे न्यूज़ इसका प्रोडक्शन का हिस्सा है, तो हम उस पर मजीद बहस या डिबेट उस पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं जो इस टाइम हमारे पास डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म एंड फिल्म ड्रामा स्टडीज़ पढ़ रहे हैं। तो जब आप फिल्म ड्रामा या डॉक्यूमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने डॉक्यूमेंट्री के लिए मैंने बताया है कि आपने लोकेशन शॉट्स को रिकॉर्ड करना है, आपने अपने इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करना है, और वॉइस ओवर, जो स्क्रिप्ट आपने लिखा है उसका ऑडियो वॉइस ओवर लेना लास्ट में। इसी तरह अगर आप फिल्म ड्रामा के स्टूडेंट्स हैं, तो जो आपने अपने स्क्रिप्ट में, जो आप अपने स्क्रीन प्ले में आपने स्क्रीन प्ले लिखा है, उसी स्क्रीन प्ले के मुताबिक सीन वाइज, सीन 1, सीन 2 एंड देन कैरी ऑन टुवर्ड्स योर लास्ट सीन, आपके आखिरी सीन तक जो जो आपने मेंशन किया है वो आपने अपने डायलॉग्स, अपने लोकेशंस को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि कैमरा हैंडलिंग क्या होनी चाहिए, उसकी केमिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैंने अपने कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि फ्रेमिंग क्या हो जो आपने रिकॉर्ड करना है। फिल्म या ड्रामा के लिए रिकॉर्डिंग की कुछ गाइडलाइंस जो होती हैं वो अलग होती हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्री की रिक्वायरमेंट रिकॉर्डिंग्स की अलग होती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम दोनों हवाले से बात करते चलें, तो कुछ कैमरा शॉट्स हैं जिनको समझना कि वो कैमरा शॉट्स की फ्रेमिंग क्या है, उस फ्रेमिंग को समझना इंतहाई अहम है। उस फ्रेमिंग को समझने के लिए सबसे पहले तो हम जिस शॉट की बात करेंगे, दैट इज लॉन्ग वाइड शॉट। बेसिकली दिस इज आल्सो कॉल्ड द एस्टेब्लिशिंग शॉट, इसको हम एस्टेब्लिशिंग शॉट भी कहते हैं। अब एस्टेब्लिश पहले इसके मैं आपको ये बताऊं कि ये हमने रिकॉर्ड कैसे करना है, शूट कैसे करना है, हमारा फ्रेम कैसे होगा। ये जरूरी है कि हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं, लॉन्ग शॉट या वाइड शॉट क्यों रिकॉर्ड करते हैं। लॉन्ग शॉट या वाइड शॉट इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि जब भी कोई सीन एस्टेब्लिश, यानी कि कोई आपका सीन है हॉस्पिटल का मंजर, मतलब आपने अपने स्क्रीन प्ले में ये लिखा है कि अस्पताल का मंजर। अब डायरेक्टली आप जो है क्लोजअप पे या आप मीडियम क्लोजअप पे चले जाएं, तो आप उस पे ये होगा कि आप मीडियम क्लोजअप या क्लोजअप पर जब जाएंगे तो आपकी ऑडियंस क्लेरिफाई नहीं होगी कि ये कहाँ का मंजर है। तो उस सीन को एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये एक हॉस्पिटल का मंजर है, ये घर का मंजर है, ये एक ऑफिस का मंजर है, तो आप एस्टेब्लिशिंग सीन जो है वो दिखाते हैं, जिसको हम लॉन्ग शॉट में कवर करते हैं। इट एस्टेब्लिश द सेंस that show the subject in their surrounding, कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप किस सराउंडिंग में मौजूद हैं, and then tells the viewer where the action is taking place। जैसा कि मैं बता रहा था कि कहाँ ये एक्शन हो रहा है, आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो इस टाइम पर कहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि जो आप सीन लिखते हैं, सीन में आप लिखते हैं घर का मंजर, तो उस घर को दिखाना, उसको स्टेब्लिश करना जरूरी है। आप डायरेक्ट कन्वर्जेशन पर, डायरेक्ट डायलॉग्स पर नहीं चले जाएंगे। डायलॉग्स पर जाने से पहले आपने एस्टेब्लिश करना है सीन्स अपने ऑडियंस के लिए कि आप रिकॉर्ड कहां पर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? मैं एक दफा दोबारा इसको रिपीट कर देता हूं कि लॉन्ग शॉट या वाइड शॉट को हम एस्टेब्लिशिंग शॉट भी कहते हैं, और ये सीन बेसिकली आपके दिखाता है कि आपके कैरेक्टर्स की सराउंडिंग क्या है। जैसा कि अगर आप इस तस्वीर में देखते हैं, तो इस पिक्चर में हमें यह नजर आ रहा है कि एक खेत का मंजर, गांव के किसी एक खेत का मंजर, जहां पर हमारे 3 कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो अब इनकी जो कन्वर्सेशन होगी, जो ये डायलॉग्स होंगे, वो फिर हम फर्दर शॉट्स में जो है वो इसको कैरी ऑन करते हैं। द सेकंड शॉट इज एक्सट्रीम लॉन्ग वाइड शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग वाइड शॉट, दिस शॉट इज वाइडर देन द लॉन्ग शॉट टू शो द वाइड व्यू ऑफ योर सराउंडिंग्स। अगर आपने अपने सराउंडिंग्स का एक वाइडर व्यू देना है, अगर उसको मजीद जो है आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली दिस इज आल्सो
कैप्चर टू शो योर सराउंडिंग्स, लेकिन अगर आप उसको मजीद एक्सट्रीम वाइड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी सराउंडिंग्स को मजीद क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि करेक्टर के इर्द गिर्द का है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपका करेक्टर बहुत जो है वो क्लोजअप में आ जाता है। फिल्म में या ड्रामा में ये शॉट तब लिया जाता है जब आप उस सीन को या तो स्टैब्लिश कर रहे हूं या फिर आप उस सीन को क्लोज कर रहे हूं, तो तब एक्सट्रीम वाइड एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट जो है वो कैप्चर किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज मीडियम शॉट. This is used to introduce the character for the first time. When you are introducing your character for the first time, you have to take the medium close-up shot. ये जिस तरह आप इस सीन में देख रहे हैं कि इसकी फ्रेमिंग होगी कैसे, मीडियम क्लोजअप शॉट के लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम क्या होगा. दिस फ्रेमिंग इज यूजली सेट दैट द टॉप ऑफ द फ्रेम इज जस्ट अबव द हेड एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज जस्ट बिलो द वेस्ट. यानी कि आपका जो टॉप है वो आपके सर से थोड़ा सा ऊपर और जो आपका बॉटम है वो आपकी वेस्ट से थोड़ा सा नीचे, जस्ट बिलो द वेस्ट. ये शॉट मीडियम शॉट जो है ये तब आप लेते हैं जब आपने अपने फिल्म ड्रामा में अपने करेक्टर को पहली दफा आपने इंट्रोड्यूस कराया है या आप अपने करेक्टर को दिखा रहे हैं. कन्वर्सेशन के दौरान भी ये शॉट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, या फिर साइलेंट जब आप अपने करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप विदाउट डायलॉग्स जब करेक्टर आ रहा होता है तब आप ये शॉट जो है वो दिखाते हैं. यानी कि एक करेक्टर आपका किसी ऑफिस में बैठा हुआ है या फिर वो चलता हुआ आ रहा है, या तो उसे लॉन्ग शॉट में एस्टेब्लिश करेंगे कि क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या है, करेक्टर की पोजीशन क्या है, कहाँ पर मौजूद है, और उसके बाद फिर एस्टेब्लिश जब आपने कर लिया सीन के सराउंडिंग क्या है, कहाँ पे हो रहा है, फिर आप जो है वो मीडियम शॉट में आ जाते हैं. एंड देन देयर इज अ मीडियम क्लोजअप. Medium close-up is basically used when you are doing a conversation between characters. जब characters के दरमियान dialogues हो रहे होते हैं तो medium close-up shot. This is closer than the medium shot. Medium shot को मजीद अगर थोड़ा सा खींच लिया जाए ऊपर से भी नीचे से भी, यानी कि above और bottom दोनों से थोड़ा सा मजीद close कर दिया जाए तो वो फिर medium close-up बन जाता है. The top of the frame is just above the character's head and the bottom of the frame is just below the chest. यानी कि जो पहले medium shot में हमारा बिलो जो था फ्रेम वो जस्ट बिलो द वेस्ट था, अब वो क्या हो जाएगा जस्ट बिलो द चेस्ट. आपने यहां पर फ्रेम को कट कर देना है, लेकिन हमेशा फ्रेमिंग करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका लेफ्ट राइट क्लियर होना चाहिए. आपकी जो शॉट की कंपोजिशन है उसमें आपके लेफ्ट या राइट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ना हो जो कि कंफ्यूज कर रहे हो कि ये कौन है. ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क अपने शॉट के दौरान आपने नहीं रखना. अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो इस पिक्चर में क्या है कि उसके लेफ्ट या राइट पे या बैकग्राउंड पे कोई ऐसा नॉइज नहीं है कि जिससे आपके कैरेक्टर्स की जो आपकी ऑडियंस है उनकी तवज्जो कहीं और चली जाए. तो हमेशा अपने ऑडियंस की तवज्जो को कैप्चर करने के लिए, उनका इंटरेस्ट को कैप्चर करने के लिए आपने अपने फ्रेम की कंपोजिशन जो आपने सेट की है उसमें नॉइज नहीं होना चाहिए. नॉइज इन अ सेंस कि कोई ऐसा कैरेक्टर या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए जिससे आपकी जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट, उनकी तवज्जो दूसरी जानिब चली जाए. तो अगर हम इसकी मीडियम शॉट के बाद अगर हम बात करें, ये एक और आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर भी मीडियम शॉट में क्या है कि वो उस लड़की का जो टॉप फ्रेम है वो दैट इज जस्ट अबव द हेड एंड द बॉटम फ्रेम इज जस्ट बिलो द चेस्ट. तो आपने हमेशा कंपोजिशन इस तरह से रखनी है. इस पिक्चर में भी ऐसा ही है कि लेफ्ट या राइट पे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नॉइज मौजूद नहीं है. देन कम टू द क्लोजअप शॉट. दैट इज हम अगर इसकी बात करें तो ये मजीद उसको क्लोज कर देता है. मीडियम क्लोजअप को जो है वो मजीद क्लोज किया जाता है. इट इज यूज्ड टू रिवील द कैरेक्टर्स फीलिंग. बेसिकली जब आप अपने किसी कैरेक्टर की फीलिंग को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, आप उसके मूड को एक्सप्रेस करते हैं, अपने कैरेक्टर के मूड को एक्सप्रेस करते हैं, तब आप ये फ्रेम लेते हैं. इट इज यूज्ड टू रिवील द कैरेक्टर्स फीलिंग, रिस्ट्रिक्ट हाउ मच अ सीन एंड आर एक्शन इज द ऑडियंस सीज. यानी कि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कितना जो सीन है वो आपकी ऑडियंस ने देखना है. आपने बैकग्राउंड बिल्कुल खत्म कर दिया. आप इस पिक्चर में देखें तो क्या है कि इसका अगर द टॉप ऑफ द फ्रेम इज जस्ट अबव द कैरेक्टर्स हेड, आपके कैरेक्टर के हेड पे मजीद मतलब वो थोड़ा नीचे आ गया है, एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज जस्ट बिलो द चिन. ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जा रहा है. यानी कि मीडियम शॉट में आप वेस्ट तक थे, मीडियम क्लोजअप में आप चेस्ट तक आ गए बॉटम, एंड इन क्लोजअप शॉट आप मजीद ऊपर आ जाते हैं चिन तक. तो इसी तरह आपका जो टॉप ऑफ द फ्रेम है वो आप या तो सर से बहुत ज्यादा रूम नहीं होना चाहिए, सर के ऊपर बहुत ज्यादा रूम नहीं होना चाहिए. तो जिस तरह मैं बाकायदा लास्ट पिक्चर में भी अगर आप देखें, ये क्लोजअप की पिक्चर है, तो इसमें क्या है कि जो अबव
फ्रेम है वो क्या है, जस्ट दैट इज जस्ट अबव द हेड एंड द बॉटम इज जस्ट बिलो द चेस्ट। और इस शॉट में अगर आप देखें तो क्लोजअप जो है वो उसी तरह सर के करीब है, वो उसी तरह, इतना ज्यादा नॉइज नहीं क्रिएट हो रहा, यानी कि बैकग्राउंड में ऐसी कोई चीजें नहीं आ रही जो हमें डिस्टर्ब करें। और जो उसका बॉटम है ये चिन के, दैट इज जस्ट बिलो द चिन। ये इसलिए यूज होता है कि आप अपने कैरेक्टर्स के इमोशंस को, उसके मूड को, उसके फीलिंग्स को जो है वो रिवील करें, एक्सप्रेस करें। जब आपने किसी कैरेक्टर की फीलिंग को, यानी कि जब यहाँ पर डायलॉग्स नहीं हो रहे, यहाँ पर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब आपने ये दिखाया कि वो मुस्कुरा रहा है आपका कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर जो है वो डिप्रेशन में है, वो सैड है, उसका मूड क्या है, वो अनाइंग उसका मूड है, वो हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है, हैप्पी है, जिस तरह सा उसका मूड होगा उसके मुताबिक आपने क्या करना है, इस फ्रेम को क्लोज कर देना है, ताकि आप जब उसके कैमरा उसके चेहरे के तासुरात को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं, तब आप क्लोजअप पे जाते हैं, उसकी स्माइल को कैप्चर करने के लिए, उसकी वरी को कैप्चर करने के लिए, तब आप ये शॉट इस्तेमाल करते हैं। एंड देन कम्स टू द एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ये मजीद आप उसको क्लोज कर देते हैं। इट इज ऑफन यूज्ड टू रिवील द फीलिंग विदाउट यूजिंग डायलॉग or to provide the audience with a view of specific details। उसी क्लोजअप को अगर आप स्पेसिफिक डिटेल्स में दिखाना चाहते हैं, मतलब वो जो उसकी स्माइल है, उसकी वरीनेस है, उसकी सैडनेस है, अगर आप उसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मजीद डीपली उसको देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मजीद उसको क्लोजअप कर देंगे। यानी कि जहां आप क्लोजअप शॉट में उसका पूरा चेहरा दिखा रहे थे, वहां आप उसको मजीद, इस पिक्चर में जैसा कि आप देखें तो ये उसके आंसू दिखा रहा है। तो क्या है कि आप जब ये आंसू, उसकी खुशी, अगर इस पिक्चर में देखें तो उसके वो जो स्माइली फेस है, उसकी आंखों की ये जो चमक है, या कोई खास अगर आप नंबर्स दिखाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के, किसी सीन में कोई नंबर्स, कोई लोगो, इस तरह की चीजें दिखाना चाहते हैं, तो आप एक्सट्रीम क्लोजअप में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड द पर्सन's eyes, mouth or hand or an intimate object such as the content of a letter। मैं जिस तरह बात कर रहा था, अच्छा सिर्फ फीलिंग्स नहीं, आप उसकी हैंड मूवमेंट को भी दिखा सकते हैं। यानी कि अगर एक बंदा, आप एक सीन कैप्चर कर रहे हैं कि एक बंदा लैपटॉप पर या एक कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो आप उसके सिर्फ हाथों की मूवमेंट को, कि वो किस तरह अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, कौन कौन सा बटन दबा रहा है, या किस बटन पे उसने क्लिक किया। बाद हमने ये देखना होता है ना कि एक बंदा मैसेज सेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक्सट्रीम क्लोजअप लेंगे कि he has typed the message and he entered that content, और उसने क्या किया, वो उसने एंटर स्पेस किया और वो कंटेंट, जो मैसेज चला गया, सेंड ईमेल। इस तरह का अगर आपने कंटेंट दिखाना है अपने व्यूअर्स को, यानी कि आप एक्सट्रीम किसी शॉट को एक्सट्रीम लेवल पे क्लोजअप ले लेते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने या तो अपनी फीलिंग्स को डीपली एक्सप्लेन करना है, या फिर अगर कोई इस तरह का सीन दिखाना है कि वो नंबर्स हैं, टाइपिंग है, हाथ की मूवमेंट है, चेहरे के तासुरात हैं, उसका रोना है, उसकी खुशी है, उसकी आंखों की चमक है, तो इस तरह के शॉट्स को एक्सट्रीम क्लोजअप में दिखाया जाता है। दैट इज मोर क्लोज टू द क्लोजअप शॉट। इसी तरह नेक्स्ट शॉट डॉक्यूमेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओवर द शोल्डर। That is not only important for the documentary students, that is also important for the film and drama students। फिल्म एंड ड्रामा में इंतहाई अहम जो शॉट होता है, जो इंतहाई अहम सिलेक्शन होती है फ्रेमिंग की, दैट इज ओवर द शोल्डर। ओवर द शोल्डर में दो करेक्टर्स की आपस में कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है। ओवर द शोल्डर इसलिए लिया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन किससे गुफ्तगू कर रहा है। आप अगर ये देखें, ओवर द शोल्डर, this shooting over the shoulder of one subject to reveal another subject, the speaker's full face is shown while the camera is aimed over the shoulder of the listener। आपने स्पीकर का फुल फेस दिखाना है और लिसनर का क्या है, आपने शोल्डर दिखाना है। यानी कि पीछे से आप ऐसे कैप्चर करते हैं कि दो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे के सामने इस तरह से खड़े हों कि बोलने वाला जो है वो कैमरे के बिल्कुल सामने हो, और सुनने वाला जो लिसनर है वो उसके बैक साइड से कैमरा उसे फ्रेम करे। यानी कि आप अगर इन दोनों कैरेक्टर्स में देख रहे हैं कि ये दो ख्वातीन आपस में गुफ्तगू कर रही हैं, तो इनकी कैमरा की फ्रेमिंग कंपोजिशन ऐसी है कि सुनने वाले का भी पता चल रहा है दैट हु इज लिसनर एंड हु इज स्पीकर। ये चीज क्लियर कट होनी चाहिए। आपकी ऑडियंस, आपकी जो वो इस हवाले से डिस्टर्ब ना हो कि कौन बोल रहा है, कौन बातचीत कर रहा है, नॉइज नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि बोल कौन रहा है। अगर आप सिर्फ पिक्चर लेते हैं, स्टिल फोटोग्राफी करते हैं, तो स्टिल फोटोग्राफी में भी ओवर द शोल्डर से इसलिए कैप्चर किया जाता है, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इससे लिसनर और स्पीकर का पता चल सके। लेट्स कम टू द साइड एंगल।
अगर हम साइड एंगल की बात करें तो जिस तरह हम ओवर द शोल्डर डिस्कशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ओवर द शोल्डर हम यूज करते हैं कि उसमें डिस्कशन को शो किया जाए, इसी तरह साइड एंगल भी इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो हमारे करेक्टर्स हैं उनके आपस में कन्वर्सेशन को दिखाया जाए. द कैमरा इज प्लेस्ड एट आई लेवल बट यूजुअली एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द सब्जेक्ट. आप अपने सब्जेक्ट से 45 डिग्री एंगल पर उसे कैप्चर करते हैं. यानी कि अगर मेरा कैमरा जो इस टाइम पे मेरे फ्रंट पे है, आई लेवल पे, आई लेवल क्या है कि मेरी आंख कैमरे में है, ये आई, दैट इज आई लेवल. और अगर मैं यहां पर चला गया हूं और मेरी आंख कहीं और है तो कैमरे को इधर होना चाहिए, लेकिन कैमरा इधर नहीं है क्योंकि मैं कहीं और देख रहा हूं. तो आई लेवल का मतलब ये होता है दैट इज स्ट्रेट, योर कैमरा आई एंड योर आईज आर यानी इक्वली पैरेलल. आपकी अपनी आंखें और कैमरा की जो आंख है वो मुतवाजी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ताकि आप की जो देखने वाले ऑडियंस हैं उन्हें ये पता चले कि बात किससे हो रही है. आई लेवल पे होना चाहिए और इसी तरह, लेकिन होना चाहिए 45 डिग्री पे. आई लेवल यहां पर और 45 डिग्री एंगल यानी कि आपकी लेफ्ट या राइट साइड से. इन दोनों पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि आप क्या है कि 45 डिग्री एंगल पे है. द ऑडियंस व्यू द एक्शन बट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्शन. जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, जो आपके करेक्टर है जिसको कैप्चर किया जाता है, he or she is involved in the scene but he or she is not involved with the camera eye. कैमरे की आंख, जिस तरह अभी मैं कैमरे की आंख से को देख रहा हूं, अभी मैं इन्वॉल्व किसके साथ हूं, कैमरे की आंख के साथ. आई लेवल पे है लेकिन स्ट्रेट एंगल है. इसी तरह आई लेवल पे होना चाहिए कैमरा, लेकिन क्या होना चाहिए, साइड एंगल होना चाहिए, एंगल लेफ्ट या राइट पे होना चाहिए. अगर मेरे साथ इसी तरह इधर कैमरा लगा होता मेरे लेफ्ट या राइट साइड पे 45 डिग्री एंगल पे, तो मैं बात तो आपसे कर रहा होता लेकिन कैमरा मुझे साइड से कैप्चर करता. तो साइड एंगल बेसिकली इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप कैमरे की आंख के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट करने के बजाय आप अपने सीन्स को दिखाएं. अच्छा, द नेक्स्ट एंगल इज लो एंगल. द कैमरा इज प्लेस्ड बिलो द सब्जेक्ट एंड एम्ड अप, शूट अपवर्ड. This angle exaggerate height and can give the impression that the subject is larger and the more powerful. आप इस शॉट में बेसिकली अपने करेक्टर को पावरफुल दिखाते हैं. क्राइम में जब आप किसी क्राइम को कैप्चर करते हैं या किसी बिल्डिंग को कैप्चर करते हैं, किसी ऐसे करेक्टर को जिसको आपने मोर पावरफुल शो करना है, उसकी हाइट को ज्यादा दिखाना है, तब आप ये एंगल लेते हैं, लो एंगल. यानी कि आपका करेक्टर के नीचे से आपने कैमरा प्लेस करना है. नीचे से आप जब कैमरा प्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड लो एंगल. यानी कि आप अपने मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको इस शो करता हूं. ये देखें, ये जहां पर आप बास्केट, ये वॉलीबॉल की ये पिक्चर जो कैप्चर की गई है, ये बिल्कुल नीचे से फ्रेम किया गया है. इसी तरह अगर ये दरख्त की बात कीजिए, ट्री की बात कीजिए, तो इसकी भी हाइट दिखाने के लिए, इसको बड़ा दिखाने के लिए क्या किया गया है, नीचे से कैप्चर किया गया है. तो नीचे से ये ज्यादातर जो शॉर्ट लो एंगल है, ये आप क्राइम को, किसी ऐसे खौफनाक वाक़े को जिसमें मतलब आप उस करेक्टर की हैबत को इंक्रीज करना चाहते हैं, तब आप ये वाला सीन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, लो एंगल. इसी तरह हाई एंगल है लो एंगल के बिल्कुल अपोजिट. द कैमरा इज अबव द सब्जेक्ट मैटर एंड एम डाउन टू शूट डाउनवर्ड, एंड दिस एंगल हैज the effect of reducing the apparent height of the subject and give the impression that the subject is smaller and less powerful. बिल्कुल अपोजिट है हाई एंगल के, लो एंगल के. लो एंगल में आप अपने करेक्टर को, अपने सब्जेक्ट को पावरफुल और लंबा दिखाते हैं, बड़ा दिखाते हैं. बिल्डिंग है, करेक्टर है, दरख्त है, कोई भी चीज है. लेकिन हाई एंगल बिल्कुल उसके अपोजिट है. इट इज शूट डाउनवर्ड. आप ऊपर से नीचे से इस तरह से मतलब उसको फ्रेम करते हैं. आजकल तो खैर ड्रोन्स के जरिए मुख्तलिफ शॉट्स दिखाए जाते हैं, लेकिन ये ड्रोन या उस तरह का कोई वो सीन नहीं है. दैट इज लाइक यू कैप्चर योर सेल्फी. आपने फ्रेम को ऊपर से दिखाया, कैमरे को ऊपर से दिखाया, तो ये बेसिकली अपने करेक्टर की हैबत को कम करने के लिए, उसको लेस पावरफुल शो करने के लिए, उसको स्मॉलर शो करने के लिए दिखाया जाता है. अगर इस पिक्चर में देखें, ये जो बॉक्सिंग पंच के साथ जो करेक्टर मौजूद है, इसके हाइट का नहीं अंदाजा हो रहा. हालांकि ये ब्लैक काफी लंबी चौड़ी हाइट के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एक बोना सा आदमी हो, जैसे एक कमजोर सा आदमी हो.
एक बेबस आदमी हो, यानी कि किसी की कमजोरी को दिखाने के लिए, किसी की बेबसी को दिखाने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए, उसकी हाइट को कम करने के लिए आप हाई एंगल शॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप इन पिक्चर्स में देखें कि वो एक लड़के को कमजोर और इस आदमी को पावरफुल शो करने के लिए जो दिखाया जा रहा है, दैट कैन इंटीमेट कि आप किस तरह अपने जो है करेक्टर को छोटा दिखा रहे हैं। इसी तरह इस कुत्ते की अगर बात की जाए या बाकी करेक्टर्स की बात की जाए, तो आप अपने करेक्टर को कम हाइट में छोटा दिखाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। नो कम टू द कैमरा मूवमेंट। हमने बात की थी स्टार्ट में कि आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। हमने सीखना था रिकॉर्डिंग्स क्या हैं, फ्रेमिंग क्या है, कैमरा मूवमेंट्स क्या हैं। कैमरा मूवमेंट की अगर बात की जाए, जिस तरह कैमरा फ्रेमिंग होती है, इसी तरह मुख्तलिफ शॉट्स जो हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्री में, फिल्म में भी, लेकिन फिल्म में ज़्यादातर जो आपके डायलॉग्स होते हैं वो जो आपके फ्रेमिंग होती है वो डायलॉग्स पर डिपेंड करती है, जिसमें लॉन्ग शॉट हो गया, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हो गया, मीडियम है, मीडियम क्लोजअप है, आप ज़्यादातर ये शॉट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह जब आपने सीन्स को दिखाना है, डायलॉग्स से हटकर अगर आपने मंजर कशी करनी है, तो आप कैमरा मूवमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में कैमरा मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। कौन कौन से कैमरा मूवमेंट है? दैट इज़ डॉली। सबसे पहले डॉलिंग की अगर बात की जाए, प्लेसिंग अ कैमरा ऑन अ ट्राइपॉड with wheels. Also camera to follow the allow camera to follow the action while maintaining the steady non-shaky shoot. ये मूवमेंट तब यूज की जाती है जब आपने अपने करेक्टर को चलता हुआ दिखाना है, जब आपने करेक्टर को कहीं जाता हुआ दिखाना है, दौड़ता हुआ दिखाना है, उसकी मूवमेंट दिखानी है, उसका चलना फिरना दिखाना है, तब आप ट्राइपॉड पर व्हील्स के थ्रू, ये डॉली बेसिकली उसको कहते हैं कि जो एक व्हील कार्ट यूज किया जाए, जिस पर ट्राइपॉड और कैमरा इसलिए प्लेस करते हैं ताकि शेकी ना हो, इमेज हिले ना। अगर आप वैसे व्हील कार्ट पे कैमरा लेकर अगर चलते हैं तो आपका कैमरा शेक करेगा। अगर या आप वैसे कैमरे को इस्तेमाल करते चलते हैं तो फिर आपका कैमरा कहीं ना कहीं शेक कर देता है, तो शेकी इमेज सी बनती है। उस शेकी इमेज से, ब्लर होने से बचने के लिए, शेकी इमेज प्रोड्यूस करने से बचने के लिए, स्मूथ और स्टेडी इमेज बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए आप क्या करते हैं? डॉली को इस्तेमाल करते हैं। डॉली बेसिकली इज अ व्हील कार्ट जहां पर कैमरा प्लेस किया जाता है ट्राइपॉड पर, इसलिए ताकि आप मूवमेंट को कैप्चर करें, आप अपने करेक्टर्स के चलने फिरने को कैप्चर करें, उसके लिए आप डॉली का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन देयर इज यूज्ड अ पेन बेसिकली क्या होता है कि जब आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किसी शॉट को कैप्चर करते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ के फ्रेम से एक पेन शॉट कैप्चर करना चाहूँ, तो पेन शॉट क्या होगा बेसिकली, अगर वो मेरा पेन शॉट लेफ्ट टू राइट है तो वो इस तरह से जाएगा, और इसी तरह अगर मैं पेन राइट करना चाहूं तो मेरा पेन शॉट, मेरा जो कैमरा है वो कैमरे का फ्रेम बिल्कुल इस तरह जाएगा। लेकिन पेन शॉट लेने के लिए एहतियात ये करनी है कि हिले ना। आपने उसको स्टेडी रखना है, स्टेबल रखना है अपने शॉट को, शेकी नहीं होना चाहिए। द कैमरा इज मूव्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मच लाइक द हेड शेकिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से नो। यानी ये उसकी मूवमेंट है। जैसे हम नो कहते हैं तो ये बेसिकली है यूज टू फॉलो द आई एक्शन। इस्तेमाल क्यों किया जाता है? किसी एक्शन को फॉलो करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को फॉलो करने के लिए। ट्रेन गुजर रही है, आपने पैन किया लेफ्ट टू राइट। इसी तरह गाड़ी गुजर रही है, गाड़ी की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, उसको फॉलो अप देते हुए कि कहां तक जा रही है आपने। तब ये डॉक्यूमेंट्री में ज्यादातर ये शॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ जगहों को दिखाने के लिए, मंजर कशी करने के लिए कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, उसको दिखाने के लिए, लोकेशन शॉट्स को कैप्चर करने के लिए आप पैन शॉट्स यूज करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पैन शॉट इस्तेमाल किया होता है, इसी तरह टिल्ट शॉट होता है। जिस तरह पैन शॉट लेफ्ट टू राइट कैप्चर होता है, इसी तरह टिल्ट शॉट जो है वो या फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड कैमरा जाता है या फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाता है, यानी कि टिल्ट अप or tilt down. The camera is moved vertically up or down, much like head nodding yes, and can be used to follow something as it fall or raise. कोई चीज गिरती हुई दिखानी है या उठती हुई दिखानी है, या फिर आपने बिल्डिंग को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? ये कैमरा नीचे से ऊपर जाएगा, दैट इज कॉल्ड टिल्ट अप। और अगर आपने को ऊपर से किसी को छलांग लगाते हुए दिखाना है फिल्म में, या कि कोई चीज ऊपर से गिरती हुई दिखानी है, कोई चीज उड़ती हुई दिखानी है, तो क्या करेंगे आप? जिस तरह वो चीज, अगर कोई पैराग्लाइडिंग का कोई शॉट लेना है तो क्या करेंगे आप? जिस तरह वो पैराग्लाइडर ऊपर से नीचे आ रहा है, आपका कैमरा भी ऊपर से इसी तरह
टिल्ट करता हुआ टिल्ट डाउन होगा, नीचे आएगा। और अगर कोई चीज, कोई जहाज ऊपर उड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, कोई कोई ऐसा कैरेक्टर जो ऊपर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, टिल्ट अप करेंगे, यानी कि नीचे से आपका कैमरा जाएगा ऊपर। दैट इज कॉल्ड टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। दे आर मच सेम लाइक पेन लेफ्ट एंड पेन राइट, और ये उसी तरह होता है टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। जूम शॉट इसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाज दफा हम क्या करते हैं, अपने फ्रेम्स को एक ही फ्रेम में कैप्चर करते हैं, सॉरी एक ही शॉट में कैप्चर करते हैं अपने फ्रेम्स को। यानी कि हम लॉन्ग शॉट में थे, लॉन्ग शॉट पे हमने मीडियम शॉट में आना है, तो हमने क्या करना है, अपने फ्रेम को क्लोज कर देना है। दैट इज कॉल्ड जूम इन। और इसी तरह अगर हम क्लोज में थे और हमने सराउंडिंग दिखानी है, हम मीडियम शॉट में थे, मीडियम क्लोजअप में थे और हमने अपनी सराउंडिंग्स दिखानी है, हमें क्लोजअप शॉट में थे, तो हम क्या करेंगे, जूम आउट, फ्रेम को बड़ा कर देंगे। फ्रेम को छोटा करना, जूम इन, फ्रेम, छोटे फ्रेम को बड़ा फ्रेम करना एक ही सीन में, एक ही शॉट में, दैट इज कॉल्ड जूम आउट। अकम्प्लिश्ड बाय प्रेसिंग द W और द T ऑन द जूम कंट्रोल। वो जो बटन होता है कैमरे पर, W या T, यानी कि जूम इन और जूम आउट, ब्रिंग्स द व्यूअर्स क्लोजर और टू द फर्दर अवे फ्रॉम द एक्शन। जैसे कि मैंने बताया, आपने या उसको क्लोज करना है या फिर उसको मजीद जो है वो आगे लेके जाना है, तो दैट इज कॉल्ड जूम इन और जूम आउट। आज के लेक्चर का जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। कमिंग जो वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर होगा उसमें हम इसको कवर करेंगे, लेकिन उसकी मैं एक जो है वो एक जस्ट पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सेट डिजाइनिंग। सेट डिजाइनिंग क्या है, इस पर मजीद डिटेल डिस्कशन होगी। लाइटिंग क्या है, इस पर डिटेल इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन होगी। 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक क्यों यूज की जाती है, 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक में क्या क्या है, की लाइट क्या है, की लाइट क्यों इस्तेमाल की जाती है, की लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, फिल लाइट क्या है, फिल लाइट क्यों इस्तेमाल की जाती है, बैक लाइट क्या है, और इसी तरह इसका वीडियो डेमो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या अचीव किया, जो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, अगर उसकी बात करें तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने क्या अचीव किया और क्या अचीव करना था, हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या थे और हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या थे आज के लेक्चर के। जस्ट हैव अ रिकैप, अ शॉर्ट रिकैप ऑफ द टुडेज लेक्चर। कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, उसको सिर्फ एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। आवर टुडेज टॉपिक वाज प्रोडक्शन, दैट इज सेकंड फेज। और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि वी हैव टू create understanding about the production phase, we have to create understanding about the audio and video recording, to build understanding about the camera framing, to discuss the camera movement, to discuss the set designing, and to highlight the lighting techniques. And after this lecture, आज हमने achieve किया क्या है, we have achieved that what is production phase, we discussed about it, we achieved that what is video recording, we achieved the objective, the chemistry of framing in the production, and we achieved our fourth objective, the camera movement. In next lecture we will inshallah discuss the what is set designing and what is the 3-point lighting technique. आज के लेक्चर का अगर रिकैप लिया जाए तो इस रिकैप लेक्चर में हमने पढ़ा कि जब आफ्टर द अप्रूवल ऑफ योर प्रपोजल यू स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोडक्शन। जब आप अपने प्रपोजल जो है वो अप्रूव करवा लेते हैं तो फिर आप अपना एक्चुअल प्रोडक्शन की, एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स की तरफ जाते हैं। एक्चुअल रिकॉर्डिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दैट इंक्लूड्स द ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। Either you are producing a film or drama. If you are producing a film and drama, you have to record dialogues. अगर आपने फिल्म और ड्रामा जो है वो बना रहे हैं तो उसके लिए आपने डायलॉग्स रिकॉर्ड करने हैं, वो आपके स्क्रिप्ट के मुताबिक होंगे। इसी तरह अगर आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्री के लिए आपने लोकेशन शॉट्स जो है वो कैप्चर करने हैं, जो आपने अपने स्क्रिप्ट में मेंशन किए हैं, आपने अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाना है। और थर्ड वन इज इंटरव्यू रिकॉर्डिंग। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं इसी सेकंड फेज में, प्रोडक्शन फेज में आएंगी। कैमरा फ्रेमिंग आज हमने पढ़ी, हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव जो था उसमें हमने मुख्तलिफ फ्रेम्स देखे। सबसे पहले जो फ्रेम था वो था लॉन्ग वाइड शॉट। लॉन्ग वाइड शॉट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप अपने सीन को स्टैब्लिश करते हैं, आप अपने करेक्टर की सराउंडिंग्स को दिखाते हैं कि आपका करेक्टर मौजूद कहाँ है। एक्सट्रीम लॉन्ग वाइड शॉट पे आप दिखाते हैं कि अगर आप उस सीन को क्लोज करने लगते हैं या फिर ओपन करने लगते हैं तो एक्सट्रीम वाइड व्यू में दिखाते हैं कि सराउंडिंग में क्या है, फिर आप उसको लॉन्ग शॉट में लेके जाते हैं। इसी तरह मीडियम शॉट है। मीडियम शॉट
when when you have to introduce your character for the first time, जब आपने अपने character को पहले दफा जो है वो introduce करना है, you have to use the medium shot. Medium shot में आपका frame जो है, the top of the frame is just above the head and the bottom of the frame is just below the waist. And मजीद उसको अगर close किया जाए, that is called medium close-up shot, where your top of the frame is just above the head and the bottom of the frame is just below the chest. इसी तरह close-up shot है when you have to reveal the feelings of your character, when you have to reveal the mode of your character, you have to take this close-up shot. Close-up shot में the top of the frame is just above the head and the bottom of the frame is just below the chin. जो आपका टॉप फ्रेम है वो सर से ऊपर होगा, सर के पास होगा, और जो आपका बॉटम फ्रेम है वो चिन के पास होगा. एक्सट्रीम क्लोजअप में जब आप अपने कैरेक्टर्स की खुशी, की गमी, वो उनकी उसको एक्सट्रीम डीपली अगर आप उसको दिखाते हैं, या फिर हाथों की मूवमेंट, या फिर कोई इंसर्शंस आप दिखाते हैं. इंसर्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इसी तरह अगर आपने कोई इंसर्शन दिखानी है, हैंड मूवमेंट दिखानी है, किसी को काम करते हुए दिखाना है, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, अगर मतलब आपने दिखाना है कि मोबाइल पे वो चैटिंग कर रहा है अगर आपका करेक्टर, तो कैसे आप दिखाएंगे? एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट. लॉन्ग शॉट में अगर आप अपने करेक्टर के मोबाइल के चैटिंग करते हुए दिखाते हैं, तो क्या आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसने क्या मैसेज किया? नहीं. अगर आपने ये भी दिखाना है कि उसने मैसेज किया क्या, तो आप एक्सट्रीम क्लोजअप में जाओगे. अगर हाँ आपने ये नहीं दिखाना, आपने यू हैव टू जस्ट एस्टैब्लिश कि आपका करेक्टर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आप लॉन्ग शॉट में, मीडियम शॉट में कंफर्टेबल हैं. लेकिन अगर आपने ये दिखाना है कि उसने टाइप किया है, उसका मैसेज क्या है, तो फिर आपको एक्सट्रीम क्लोजअप में जाना पड़ेगा. आप अक्सर फिल्म में देखते हैं, ड्रामों में देखते हैं कि जब वो कुछ कन्वर्सेशन चल रही होती है चैटिंग पर, कुछ चैटिंग चल रही होती है व्हाट्सएप या मैसेजेस पर या ईमेल्स, तो फिर क्या करते हैं, आप एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह ओवर द शोल्डर है, ओवर द शोल्डर डिस्कशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर दोबारा आपको क्लेरिफाई कर दूं कि ओवर द शोल्डर शॉट डॉक्यूमेंट्री में ओवर द शोल्डर इस्तेमाल नहीं होगा. डॉक्यूमेंट्री में जो हम इंटरव्यू लेते हैं उसमें हम ज़्यादातर जो है मीडियम शॉट या मीडियम क्लोजअप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपने इंटरव्यूई को दिखाना है, इंटरव्यूअर को नहीं दिखाना. अगर आपने अपने इंटरव्यूअर को दिखाना होता तो फिर आप ओवर द शोल्डर शॉट इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ इंटरव्यूई को फोकस करते हैं, सिर्फ इंटरव्यूई को ही दिखाते हैं, इवन कि आप अपने इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस भी शामिल नहीं करते अपने डॉक्यूमेंट्री में, तो फिर आप वहां पर ओवर द शोल्डर शॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओवर द शोल्डर वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर दो कैरेक्टर की कन्वर्सेशन होगी, यानी कि फिल्म, ड्रामा में, म्यूजिक वीडियो में. इसी तरह साइड एंगल है. साइड एंगल क्या है कि आप आई लेवल पर कैमरा को प्लेस करते हैं कैरेक्टर के, लेकिन 45 डिग्री एंगल पर, ताकि उसकी साइड से उसकी मूवमेंट को दिखाएं, उसकी डिस्कशन को दिखाएं कि वो आपका कैरेक्टर जो है वो किस चीज में इन्वॉल्व है, क्या कर रहा है. इसी तरह साइड एंगल के बाद है लो एंगल. लो एंगल बेसिकली दैट इज यूज्ड टू शो योर कैरेक्टर मोर पावरफुल. आपने अपने कैरेक्टर की हाइट को दिखाने के लिए, उसको मजीद पावरफुल और स्ट्रांग दिखाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं. ज़्यादातर लो एंगल शॉट जो है वो क्राइम शोज में या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को, किसी क्राइम एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए, या किसी चीज़ की हाइट को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इन पिक्चर्स में भी आप अगर देख सकते हैं. तो इसी तरह लो एंगल के अपोजिट होता है हाई एंगल. हाई एंगल इज दैट इज एम्ड टू शूट फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड. ऊपर से जो है आप इसको शूट करते हैं डाउनवर्ड एम में, ताकि आप अपने करेक्टर को, दैट इज यूज्ड टू शो योर करेक्टर लेस पावरफुल, दैट इज यूज्ड टू शो योर करेक्टर smaller, that is used to show your character टू शो योर कैरेक्टर नॉट स्ट्रॉन्गर. अगर आपने अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाना, उसको बोना दिखाना है, छोटा दिखाना है, लेस पावरफुल दिखाना है, तब आप ये शॉट इस्तेमाल करते हैं. किसी की जो है बेबसी को दिखाने के लिए, किसी, जिस तरह आप इस पिक्चर में देखें तो इस लड़के की. इसी तरह कैमरा मूवमेंट्स की अगर बात की जाए तो कैमरा मूवमेंट्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आपने कौन कौन सी अपनी सराउंडिंग्स को किस तरह से दिखाना है. इसमें डॉली का इस्तेमाल किया जाता है. डॉली बेसिकली एक व्हील कार्ट होता है जिस पर आप व्हील कार्ट पर ट्राइपॉड का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी जो मूवमेंट है, आपका कैरेक्टर चल रहा है, जा रहा है कहीं पर, आप उसको फॉलोअप दे रहे हैं, तो उस फॉलोअप को देने के लिए आपकी जो मूवमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए, शेकी नहीं होनी चाहिए, स्टेडी होनी चाहिए. उसके बाद है पैन शॉट. पैन शॉट इज यूज्ड फ्रॉम पैन लेफ्ट टू राइट और पैन राइट टू लेफ्ट. आप अपने एक सीन को
लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट एक सराउंडिंग को कैप्चर करते हैं, तो उसके लिए आप पैन शॉट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज टू फॉलो द एक्शन। ट्रेन गुजर रही है तो उसको मैं कैसे कैप्चर करूंगा, जैसे जैसे ट्रेन जा रही है मैं उसको वैसे वैसे कैप्चर करूंगा, इसको कहते हैं पैन शॉट, दैट इज यूज टू कैप्चर या यूज टू फॉलो योर एक्शन। पैन शॉट की तरह टिल्ट शॉट होता है, जिस तरह पैन लेफ्ट टू राइट होता है हॉरिजेंटली, और इसी तरह वर्टिकली अप टू डाउनवर्ड फ्रॉम या डाउन टू अप जो है आप इसको कैप्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टिल्ट अप और टिल्ट डाउन। यानी कि किसी पैराग्लाइडर को किसी जहाज को लैंड करते हुए दिखाना है तो फिर आप टिल्ट डाउन करेंगे, इसी तरह जहाज की को टेक ऑफ करते हुए दिखाना है तो आप टिल्ट अप करेंगे। और इसी तरह हमारा जो लास्ट जो मूवमेंट है दैट इज जूम इन और जूम आउट। जूम इन और जूम आउट बेसिकली क्या है कि आप अपने सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, आप लॉन्ग शॉट में मौजूद हैं और एक ही शॉट पे आप लॉन्ग शॉट से शिफ्ट होना चाहते हैं। यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम लॉन्ग शॉट टू मीडियम शॉट, और यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम मीडियम शॉट टू मीडियम क्लोजअप, और फ्रॉम मीडियम क्लोजअप टू क्लोजअप। एक ही शॉट पे अगर आप ये सारा कुछ करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज जूम इन और जूम आउट। इफ यू वांट टू शिफ्ट फ्रॉम क्लोजअप टू लॉन्ग, if you have to shift from medium close up to long shot or extreme long shot, if you have to if you have to shift from a long shot to extreme long shot, extreme wide shot, you have to use zoom out। इसी तरह अगर आप जूम यानी कि एक्सट्रीम वाइड शॉट से वाइड में या क्लोजअप में आना चाहते हैं, यू हैव टू यूज द फीचर ऑफ जूम इन। आपने जूम इन करना है और जूम आउट करना है। ये एक ही शॉट में मुख्तलिफ एंगल्स को, मुख्तलिफ फ्रेम्स को कैप्चर करने के लिए जूम इन और जूम आउट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दैट कि ये लेक्चर जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सारे इंशाल्लाह इस लेक्चर पर अपनी जो है अपना फीडबैक लाजमी देंगे, अपनी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पोस्ट करेंगे, एंड इंशाल्लाह आई विल एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह उनका जवाब दिया जाएगा, और मैं चाहता हूं कि इस पर इंशाल्लाह जब इंटरेक्टिव सेशन करेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस पर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह इसमें जो मज़ीद 2 चीज़ें रह गई हैं, सेट डिज़ाइनिंग और कैमरा लाइटिंग, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।